اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے یہ میرا پیارا حیدرآباد ہے، اور حیدرآباد کا جو ایریا ہے لطیف آباد، ہم وہاں بیٹھے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ میرا پاکستان بھی ہے اور یہ سب کا پاکستان ہے، اور سب کے پاکستان کے اندر جو کام ہو رہا ہے، جو UC 119 کے اندر جو کام ہو رہا ہے، ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور پوچھیں گے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا کام کرے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں کام صحیح نہیں ہو رہا اس میں اصلاحی تنقید ہونی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں میری پوری ٹیم کراچی سے یہاں آئی ہے، حیدرآباد لطیف آباد یونٹ نمبر 10 میں UC 119 کے میں ہم موجود ہیں، اور یہاں کے چیئرمین جناب عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین سید شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم پہلے عمران بشیر صاحب کی طرف جائیں گے اور عمران بشیر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں، اور اس مہنگے بجٹ کے دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں سر؟ آپ کو اتنا بجٹ ریلیز ہوتا ہے کہ آپ یہ جو اتنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں سر؟ فراز بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنی UC آفس میں، اور پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے چینل کے ذریعے اپنے وسائل، اپنے مسائل دونوں آپ سے بیان کر سکیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اس وقت بھی لوگ آئے ہوئے ہیں میری UC میں جی، میرے ساتھ وائس چیئرمین موجود ہیں، میرے اقلیتی کونسلر بھی موجود ہیں، اور یہ عوام کے بھی لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ جو اپنے مسائل کے لیے آئے تھے۔ میں فراز بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عوام نے ہم پر دوسری دفعہ اعتماد کیا ہے۔ میں پہلے ایک تنظیم تھی، اس سے MQM سے منتخب ہوا تھا 2015-16 میں، اور 2023 کے بلدیاتی الیکشن میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے علاقے کے لوگوں کی مشاورت کے بعد ہم نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عوام نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، اور تمام تر مشکلات، رکاوٹوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور ہم اپنے محدود وسائل میں لاتعداد مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری UC کی حدود میں آتے ہیں۔ نہ صرف وہ، بلکہ ابھی میں آپ کو لے کے جب چلوں گا، آپ چلیں گے میرے ساتھ، تو ہم نے ابھی ایک روڈ CC کرایا ہے، ایک ڈسپینسری کی تعمیر شروع کی ہے، فلاحی ڈسپینسری، جو کہ نومنل فیس بالکل 25-30 روپے یا 20 روپے پہ ہم اس میں میڈیسن فراہم کریں گے۔ تعمیر ہم نے شروع کر دی ہے اس کی، انشاءاللہ جلد اس کا افتتاح کرا کے اس کا آغاز کریں گے۔ باقی ہماری UC میں الحمدللہ اللہ افتتاح کس سے کرائیں گے؟ ہمارے جو حیدرآباد کے قابل احترام میئر جناب کاشف شورو صاحب کو بلائیں گے افتتاح میں آپ؟ جی ہاں، یقیناً ہمارے میئر جو ہے حیدرآباد کے کاشف علی شورو صاحب نے ہمیں وہاں پہ ایک واسا کا کمرہ فراہم کیا ہماری درخواست پر، اور وہ ایک بند کمرہ تھا جس پر ہم مزید ایک ہال تعمیر کر رہے ہیں۔ تو کاشف علی شورو صاحب حیدرآباد کے میئر ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں اور ہماری جو ہے ڈسپینسری کا افتتاح کریں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں فراز بھائی کہ ہم نے اپنے محدود وسائل میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت ہم 95% اپنے سیوریج کے مسائل کو حل کر چکے ہیں۔ 95% بالکل، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ اچھا، ٹھیک ہے، عوام سے پوچھئے گا۔ صرف اس وقت ایک بڑی لائن ہے جو 1200-1300 فٹ کی لائن ہے، ایور شائن سے لے کر اور صفا اسکول تک ڈلنی ہے، وہ واسا نے ڈالنی ہے۔ واسا میں ہماری اسکیم منظور ہو چکی ہے، انشاءاللہ جلدی وہ ڈل جائے گی، تو پھر میں کہہ سکوں گا کہ 100% ہم اپنے سیوریج کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 99.99% ہمارے مین ہولز کورڈ ہیں، ان پہ ڈھکنے موجود ہیں۔ واٹر سپلائی کا 90% ہم ایریا اپنا کور کر چکے ہیں، واٹر سپلائی پہنچ رہی ہے۔ 10% ایریا میں 1-2 گلیاں ہیں جہاں ریسورس نہ ہونے کی وجہ سے واسا کی طرف سے وہاں پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ جہاں 30-40 سال لوگوں کے پاس کچی آبادی میں مجاہد کالونی، شاہ نجف کالونی، سی بلاک کا کچھ ایریا جہاں 30-40 سال میں پانی نہیں تھا، وہاں ہم نے لائنیں ڈال کر وہاں پانی پہنچایا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہم عوام کی خدمت کرنے، اور ہم نے یہ مسائل حل کیے ہیں۔ نہ صرف یہ کیے ہیں
بلکہ ہم اپنے دستکاری اسکول ایک ہم نے کھولا ہے بلدیہ کا پچھلے دور میں، اور وہاں بچی ہماری تعلیم سیکھ رہی ہیں، اور جو ہے اسٹریٹ لائٹس ہماری گلیاں تک روشن ہیں، ایک ایک پول پہ 2-2 3-3 لائٹیں ہیں، گرین بیلٹس ہم بنا رہے ہیں، چھوٹے 2 پارک ہم بنائیں گے انشاءاللہ اپنی باقی مدت میں، اور گرینری ہمارے روڈوں پر موجود ہے، جہاں جہاں درخت ہیں ان کو ہم نے ایسی لائٹوں سے سجایا ہے کہ ہم جو ہے اپنی یو سی کو خوشنما بنا سکیں اور ایک ماڈل یو سی کے طور پر پیش کر سکیں. اچھا مجھے بتائیے کہ ہمارے ساتھ سید شاہد علی صاحب بھی موجود ہیں. شاہد بھائی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے عمران بھائی سے؟ کوئی گھر میں رہنے والوں کے اندر آپس میں تھوڑی بہت تو اختلاف ہوتا ہے، تو کیا وہ تھوڑا بہت ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ بالکل فیاض بھائی، بالکل ہے، اختلافات تو ہیں، دوسری چیزیں پہ ہو جاتے ہیں، لیکن معاملات بیٹھ کے ہم کر لیتے ہیں اور ہونا چاہیے اختلاف. جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے. بالکل، اور آپ عمران بھائی سن سکتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہمارا ہو جاتا ہے، ہوا بھی ہے، لیکن ہم بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر کے اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، چیزوں کو کلیئر کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ایسی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی معاملات ہو، ایسا نہیں. کب سے آپ کی جوڑی بڑی مشہور ہو رہی ہے لطیف آباد حیدرآباد میں، اور یقیناً آپ کو پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ عمران بشیر اور شاہد علی کی ایک جوڑی جو آہستہ آہستہ کر کے پورے پاکستان میں مشہور ہو رہی ہے، کیسی فیلنگ آتی ہے؟ فیلڈنگ میں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی آتی ہے، کیونکہ ایک عمران بھائی کا نام بھی ہے ماشاءاللہ، میرے سے سینئر آدمی بھی ہیں، سینئر کارکن بھی ہیں، اور اسیر بھی رہے ہیں، پارٹی کے عہدیدار بھی رہے ہیں. میں نے مطلب پارٹی میں بھی رہا ہوں، لیکن ایک ٹائم ایک لمٹ کے حساب سے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے عمران بھائی کے ساتھ جو ہے تقریباً 10 سال ہو گئے ہمیں ساتھ رہتے ہوئے، ساتھ کام کرتے ہوئے. پہلے ٹینیور میں، اس کے بعد جب ٹائم ختم اس کے بعد بھی ہم ساتھ تھے. دوبارہ الیکشن میں دوبارہ کھڑے ہوئے، الحمدللہ جیتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے بڑی خوشی ہے. شاہد بھائی، اب کتنا ٹائم رہ گیا آپ لوگوں کے پاس؟ الیکشن کب ہوں گے، بلدیاتی الیکشن؟ تقریباً 1.5 سال باقی ہے ہمارا. اچھا. 2027 جون کے اندر ٹائم ہمارا پیریڈ پورا ہوا. ممکن ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن مل جائے یا الیکشن ہو، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم مان لیتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں 2027 میں یا 2028 میں، تو کیا اسی طریقے سے آپ عمران بھائی کو سپورٹ کریں گے، عمران بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے، اور ٹیم ورک کے بلدیات میں رہیں گے یا پی ایس کی طرف جائیں گے؟ انشاءاللہ بلدیات میں بھی رہیں گے اور عمران بھائی کو پی ایس میں لے کے جائیں گے. بلکہ ہمارا آپ کے ساتھ پروگرام یہ ہے کہ بلدیات کے اندر ہم نے ایک ٹیم اور مزید بڑی کرنی ہے. 10 نمبر میں جتنی یو سی ہیں یا سراؤنڈنگ ایریا میں 11 نمبر میں، اس میں بھی اپنے نمائندے ہم کھڑے کریں گے انشاءاللہ. عمران بھائی کی مشاورت سے ہمارا ایک پروگرام بنا ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن پی ایس میں عمران بھائی کو لے کے جائیں گے، پوری کوشش. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ سب سے ذرا تھوڑی گفتگو ہو جائے. عبد القیوم، کہاں رہتے ہیں آپ؟ 10 نمبر میں رہتے ہیں. تو آپ کتنا مطمئن ہیں اپنے یو سی چیئرمین عمران بھائی سے؟ یار ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی کام پڑتے ہیں نیا یو سی 119 پہ آتے ہیں، عمران بھائی کر کے دیتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے سنا ہے کہ یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ رات میں جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ کے اپنی یو سی پہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر کوئی رات کو لیٹ نائٹ بھی جاتا ہے تو پھر بھی یہ نیند سے اٹھ کے آ کے اس کے رپلائی دیتے ہیں. یہ کہاں تک بات درست ہے؟ یہ ایسی ہے یا کسی نے پھیلا دی ہے؟ نہیں بالکل، عمران بھائی ایسے بندے ہیں کہ ہم یو سی پہ آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو عمران بھائی یو سی میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ. فون کرتے ہیں یا بلاتے ہیں وہاں بھی آتے ہیں. اچھا. ہمارا اگر 10 نمبر میں فون کیا عمران بھائی یہ کام ہے تو عمران بھائی فوراً کر کے آ جاتے ہیں. تو آئندہ الیکشن میں ووٹ دیں گے آپ؟ انشاءاللہ بالکل. تو برابر میں دیں، ہم ان سے پوچھیں. آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب اللہ بھائی، آپ کی بتائیں کیا رائے ہے؟ آپ کے یو سی چیئرمین عمران بشیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وائس چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگلا الیکشن انہی کو جیتنا چاہیے یہاں سے؟ انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کے برابر میں آپ ذرا اپنا نام بتائیے گا. میرا نام نور اسلام ہے. نور اسلام، آپ کو تو کوئی یقیناً شکایت ہوگی، آپ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہے؟ دیکھیں سب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ بھی بیٹھیں گے ہم نے پیسے دے کے بٹھا دیا آپ کو. سر اس سے ہم پورا مطمئن ہیں. ہر کام جو ہے نا ہمارا یو سی میں بھی ہوتا ہے، چاروں طرف بھی گھومتے رہتے ہیں، جیسے نا یو سی میں یہ ادھر ہی ہوتے ہیں کام، جو اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں کام سے. مطمئن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے برابر میں ذرا اپنا تعارف کرائیے گا. اجمل بھائی. اجمل بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، کیسے ہیں عمران بھائی؟ کونسلر بھی ہیں آپ؟ اقلیتی کونسلر ہیں، تو پھر یقیناً آپ تو اچھا ہی بولیں گے. کوئی تو خامی ہوگی ان کے اندر. کوئی بھی نہیں.
अच्छा माशाल्लाह इनकी टीम का हिस्सा हमेशा रहेंगे। चलें बहुत ज़बरदस्त। देख रहे हैं आप मेरे जो इर्द गिर्द जो माशाल्लाह ये लॉन है और आपको पता है ग्रीनरी जो है वो खूबसूरती भी है और हमें अभी बेहतरीन किस्म की ऑक्सीजन भी मिल रही है, दिन का टाइम है और ये पौधा लगाइए, दरख्त लगाइए, इसका सवाब भी है। आपके मुल्क में जो है वो बेहतरीन किस्म की ऑक्सीजन और आपके इलाके बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनके लॉन में आने के बाद। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? जिब्रान खान। जी जिब्रान खान, आप कहें ना दिल की बात, कैसे हैं आपके यूसी चेयरमैन? ये माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें। इमरान भाई माशाल्लाह इनके लिए तारीफ समझने के लफ्ज़ नहीं है कि मैं बयान करूं। जैसी हमारी यूसी काम कर रही है अभी तक, तो मैंने लतीफ़ाबाद में किसी को भी ऐसा काम करते हुए नहीं देखा। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? इमरान भाई के शाहिद भाई कुछ दिया तो नहीं है ना? हर आदमी इमरान भाई की तारीफ कर रहा है और यकीनन इंसान का जी इंसान नहीं बोलता, उसका काम बोलता है। मेले में आप खुद विजिट करेंगे, आप देखिएगा इमरान भाई का काम बोलेगा, इमरान भाई को बोलने की भी जरूरत है। तो चलें हम वो काम चल के देखते हैं, अभी मोहल्ले में भी देखते हैं, पूरी यूसी विजिट करते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेट्रो की आवाज़ फराज शाहीन के साथ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ सारे पाकिस्तानी और अब मैं इनसे पूछूंगा इनकी हलके में मौजूद हैं और हलके के क्या काम हो रहे हैं, क्या इक़दाम हो रहे हैं, वो इमरान भाई से पहले पूछूं या आप बताएं आवाम की राय पहले ली जाए? जी मेरे कान में आवाज़ आ रही है, आवाम की राय पहले ली जाए। आइए आप ये बताइए। वालेकुम सलाम। आप इस हलके में जो काम हो रहे हैं उससे कितना मुतमईन है? हम बहुत मुतमईन हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं इमरान भाई को, जो बहुत अच्छा काम करते हैं और हम सारे इलाके वाले बहुत खुश हैं इनसे। हर काम करते हैं, माना हमारे को ये रोड बना के दिया, जो हमारा तकरीबन काफ़ी टाइम से ये रोड ख़राब था, पानी था, लोग आते थे, वादे करते थे और चले जाते थे। इन्होंने वादा किया, ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने वादा किया और वफा हो गया हो? नहीं, बस हमारे इमरान भाई ने ही किया है, काम पूरा किया है और जो वादे किए थे वो काम भी कर दिया इन्होंने। जो वादे किए थे वो काम भी कर दिया है। तो मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि अगला जब इलेक्शन हो? हम चाहते हैं कि इमरान भाई MPA बने, वजीर आजम बने पाकिस्तान के। हाँ भाई जल्दी बताएं, ये बात इनकी सही है? ऐसा होना चाहिए, आप इधर आइए, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये बताइए, माशाल्लाह आप सीनियर सिटीजन हैं, ये जो इमरान भाई ने अपने हलके में काम कर रहा है तो दिन और रात एक करके काम करते हैं या सिर्फ लोगों पर डिपेंड कर देते हैं, कभी कभार चक्कर लगाते हैं? नहीं, ये सुबह 6 बजे मतलब ना गलियों में देख रहे होते हैं, सुबह नमाज के बाद, समझे, और जो कहते हैं ना वो करते हैं। मुझ जैसा बूढ़ा और छोटा सा बच्चा इससे हर तरीके से मुतमईन है। अच्छा, हर तरीके से मुतमईन है। अच्छा आप बताइए, मेट्रो की आवाज़ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इमरान भाई के बारे में, मेट्रो की आवाज़ से? इमरान भाई जैसे काम करते किसी ने नहीं किया इधर, जैसे वो ये काम करते हैं सब सुबह से लेकर शाम तक यहीं खड़े रहता था, अपने हाथ से करवाया, किसी के हाथ से नहीं करवाया। जो काम बोलता है गली का वो तो करता है, गली का सफाई का करता है, तो किसी की भी परेशानी नहीं किया, ना करता है किसी को। अच्छा, बिल्कुल सही है। आप आगे आइए, मैं चाहता हूँ ज़रा यूथ का भी पता चले ना। इन्होंने तो सीनियर सिटीज़न ने कमेंट्स दिए, हमारी यूथ क्या सोचती है यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बारे में? सब बहुत खुश है इससे, जो है ना इमरान भाई ऐसे बंदे हैं कि जो बोलते हैं अपने वादे पूरे करते हैं। जो सर्विस बंद होती है सीपरों को भेज देते हैं, कोई ऐसे मसला होता है जो भी बोल दो तो वो बोलते हैं कि आधे घंटे में वर्कर पहुंच जाएंगे, आप चले जाएं। जो भी परेशानी होती है हर परेशानी इन्होंने हमारी हल करी है। ये रोड की परेशानी थी, ये भी इन्होंने हल कर दी और हम बहुत खुश है इमरान भाई से, बहुत खुश है। ना होने से पहले भी जब भी बरसाती हुई थी ना, तो अक्सर में नमाज पढ़ने के बाद आता तो ये पानी का अंदर होता था। जब ये बेख्तियार थे, इनके पास इख्तियार नहीं था, तब भी काम करते थे। जब पानी यहाँ पानी भरी हुई थी तो हमने इसका एक मरतबा नहीं कई बार देखा है। तो सबसे इसका अच्छी बात यह है कि मकसद आवाम के साथ कुल मिलकर काम करता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये बच्चों से पूछते हैं, बच्चे इधर आओ बेटा, इधर आओ जल्दी से, इधर आओ जल्दी। कौन बच्चा हमसे बात करेगा? कौन? ये रहा ये बच्चा। आप बताओ, एक मिनट मैं आपके बराबर आ जाऊँ। अब आप बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ का काम? मेरे को यहाँ का काम बहुत अच्छा लग रहा है और हम इमरान अंकल से बहुत खुश हैं। आप कहाँ रहते हो बेटा? सामने घर है। सामने घर है, खुश हो? जी। तो इमरान भाई को दुआ देते हो? जी। पक्की बात है, दिल से? जी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। साईं जन जा वॾा शुक्रगुज़ार आहियूं,
सम्झई साईं वॾो कमु बहितरीनु साईं तव्हांजो नालो छा आहे? नालो त अलाह ॾिनो काष्टा गोपांग बलोच सम्झ जी हा साईं असांजी अखि जी ऑपरेशन थी हुन में बि साईं जन वॾी हेल्प कई असां पंहिंजो टाइम ज़ाया कयूं असांजी वॾी जेको आहे हर ॻाल्हि में हर मसइले में अॻु में हूंदा आहिनि साईं ऐं बहितरीनु कमु करायो अथनि हर शइ में लोकेशन मूंखे ॿुधायो तव्हां दिलि सां दुआ ॾींदा आहियो साईं खे? साईं दिलि सां बाक़ाइदे फैन आहियूं साईं एतिरो बेहतरीन कम कंदा आहिनि साईं VIP दिल खुश करे छॾियूं साईं हर जबान का इमरान भाई यहाँ बोलने वाला है। यहाँ उर्दू भी मौजूद है, सिंधी भी मौजूद है, पठान भी मौजूद है, पंजाबी भी मौजूद है। हमारे सारे मुस्लिम भाई यहाँ एक साथ मौजूद हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं। महसूस नहीं करने दिया ना, इसलिए महसूस करना नहीं दिया कि ये माजिर है या पठान है या सिंधी है। हमारे साथ बैठ के खाना खाए, जब हम दावत करते हैं दावत पे जाते हैं, हमारे दावत में हमारे साथ बैठ जाते हैं, घुल मिल के बैठ जाते हैं। सारे मुसलमान भाई यहाँ मौजूद हैं। अगर हमारी ऊपर लेवल पे सारी पार्टियां मुत्तहद हो जाएं, सारी कौमियत मुत्तहद हो जाएं तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान तो बहुत सबसे आगे निकलेगा। पाकिस्तान जितना जरखेज मुल्क कोई मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान जितना जरखेज मुल्क कोई मुल्क नहीं है। सऊदी अरबिया का है, ईरान का है, पाकिस्तान का है, ऐसे 3-4 मुल्क, लेकिन पाकिस्तान जितना जरखेज मुल्क कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जितना गरीब मुल्क भी कोई नहीं है। इसका वजह ये है कि हम लोगों का ये फिर थोड़ा बड़ा है, पड़ता नहीं है और जो आता है बस और पड़ता है। अच्छा, आपका यूथ काउंसलर है, आपका गुड नेम? मोहम्मद सरवर शेख। मोहम्मद सरवर शेख, आप कहाँ रहते हो? मैं बेसिकली यहीं की रहायश है मेरी। अच्छा। आगे गली में रहता हूँ मैं। तो ये माशाल्लाह ये हमारा जो नन्हा सा ये मेरी शहजादी है। शहजादी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये मेट्रो से बहुत खुश है, मेट्रो का माइक छीनने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी आपको बैकग्राउंड पे देख भी रही थी ये बार बार। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे इमरान भाई? नहीं बेसिकली माशाल्लाह आप खुद भी आवाम की राय ले रहे हैं यहाँ पे और आपने भी देखा होगा। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए इमरान भाई जो आवाम से वादे किए थे वो हो रहे हैं और मसावी जो आपने देखा होगा थोड़ा बहुत जो मसाइल हैं वो थोड़ी बहुत इंशाल्लाह आगे अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो भी पूरे हो जाएंगे। आप किसी भी यूसी में जाके देख लें, जितना इधर काम हुआ है तो शायद ही किसी यूसी में हुआ हो ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, तभी आज साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। तभी आज साथ करें। देखिए आपने सारे पाकिस्तानियों को मुत्तहद कर दिया इमरान भाई, हर जबान बोलने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ है। तो आपको क्या लगता है कि तमाम जो हमारी पार्टियां हैं वो मुत्तहद हो जाएं तो पाकिस्तान कितनी तरक्की कर सकता है? फराज भाई, आवाम को चाहिए काम, शक्ल प्यारी नहीं होती। यहाँ मेरे साथ इस वक्त सिंधी भी मौजूद हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी मौजूद हैं, पश्तो स्पीकिंग भी मौजूद हैं और उर्दू स्पीकिंग भी मौजूद हैं। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर आज से एक हफ्ते कबल भी शायद आपकी टीम आई थी और यहाँ की सूरत हाल देखी थी आपने, और मैंने आपसे वादा किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम यहाँ पे रोड बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें तौफीक दी कि हमने अपने आवाम से किया गया ये वादा जो इलेक्शन कैंपेन में हमने किया था वो पूरा किया और तकरीबन 7,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा रोड ये हमने बना दिया है, CC रोड बना दिया यूसी फंड से। जी मैं लास्ट वीक था और मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा जुमे तक बन जाएगा। तो मैंने कहा चलें हफ्ता कर लें, सैटरडे इतवार को आप आ जाएं, लेकिन आप अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए थे कि नहीं फराज भाई आप फ्राइडे को आइएगा और मेट्रो की आवाज़ फराज शाहीन के साथ आकर आप देखिएगा पूरी टीम के साथ ये रोड बना हुआ होगा और आपने एक कारनामा सर अंजाम कर दिया। जी हाँ, आज फ्राइडे है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैंने आपसे कहा था कि जुम्मतुल मुबारक तक इंशाल्लाह हम बना देंगे, आप कह रहे थे सैटरडे करते हैं, मैंने कहा नहीं अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फ्राइडे को ये मुकम्मिल होगा। अकबर भाई भी कौंसलर हमारे साथ हैं। ये रोड हमने अपनी आवाम का देरीना मसला था, एक बड़े अरसे से ये मसला था, यहाँ गंद थी, पानी था और ये एक समझ लें हब है। हब इस लिहाज से कह रहा हूँ कि पीछे 4 गोट है मेरी यूसी में, ये रोड जो है उन गोटों को मिलाता है। यहाँ से बहुत सारे लगारी, मल्ला और दीगर कौमियत को लोग यहाँ से गुजरते हैं अपने रोज़गार के लिए। ये एक उनको परेशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाम सब देख रही है, सब ने मेरे साथ ताउन किया, यहाँ पे रातों को जाग कर पहरा दिया, इसकी हिफाजत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जी अकबर भाई अब आप आ जाएं सामने, आप यहाँ के काउंसलर हैं और मैं आपसे पूछता हूँ आप कितना जो है वो इमरान भाई के कामों से सेटिस्फाई नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अकबर शेख, जनरल काउंसलर। हमारी यूसी की कोई मकसद इतनी तारीफ़ है कि जिससे किया जाए तो किसी का तारीफ़ के काबिल नहीं है। मकसद हमारा चेयरमैन जो है इमरान बशीर माशाल्लाह दिन और रात जो है ना एक करके काम कराते हैं और हमारे लोग भी इत्तेफाक करते हैं हमारे कामों से। ठीक है, नीयत साफ़ है हमारे चेयरमैन खड़े हैं। तो आपके चेयरमैन बनने के लिए तो ये वोट काफ़ी हैं?
मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं आज़ाद हैसियत में जीता हूं और आज भी इंशाल्लाह अपनी आज़ाद हैसियत को मैंने बरकरार रखा हुआ है। मैंने अपनी आवाम से वादा किया था कि कहीं नहीं जाऊंगा, किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो पहले आपसे पूछूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ और लोगों का जो सपोर्ट है ना मुझे, वो मेरे लिए बहुत है। लोगों को मुझे घर घर जाके मतलब वोट मांगने नहीं पड़ते, लोग खुद निकलते हैं वोट डालने के लिए। जी, जो डिस्पेंसरी हमने लास्ट वीक आके देखी थी, मैं आया था अपनी टीम के साथ, उसकी तामीराती काम चल रहा था और यकीनन बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हम इमरान भाई से पूछते हैं कि लास्ट वीक तो ये दीवारें भी खड़ी नहीं थी, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आपने 4-5 दिन के अंदर दीवारें खड़ी कर दी और डिस्पेंसरी जो है वो तामीरात तेज़ी से हो रही है? सर क्या जादू का चिराग है आपके पास? अलादीन का चिराग तो नहीं? नहीं, अलादीन का चिराग नहीं है, अवाम का साथ है और अवाम की दुआ है और अल्लाह ताला का हमारा साथ है। अल्लाह ताला की करम है हम पर, उनकी रहमत है अल्लाह ताला की कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमने ये भी वादा किया था, फराज भाई, ये वादा किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि हम एक फ्लाई डिस्पेंसरी बनाएंगे। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वासा का ये जो पीछे अगर आपको ये दिखाएंगे जहाँ ये कैमरामैन खड़े हैं, ये एक छोटा कमरा था वासा का। हमने मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो साहब से इस्तदा की कि ये कमरा हमें दें, ये बंद हो चुका था, पंप हम लाइनें डाल के सेवरेज शहीद मिलत सेवरेज पंप पे ले गए थे, यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो ये कमरा दिया और ये अब आप तामीर देख रहे हैं, एक बड़ा हाल हम तामीर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये यूसी फंड से हो रहा है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि ये हम सारे काम जो रोड दिखाया मैंने आपको, ये डिस्पेंसरी दिखाई, ये हम अपने यूसी फंड से कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह महीने से 1.5 में हम इस डिस्पेंसरी को 2 महीने तक इसको रेडी कर दें और फिर मेयर साहब ने हमसे वादा किया है कि वो अमला हमें प्रोवाइड करेंगे और बहरहाल हम ने ये बिल्कुल तहिया किया हुआ है। आपके इख्तियार में जो था आपने तो काम कर दिया और वो काम हो भी रहा है। अब जाहिर सी बात है ये सारी जो आवाम यहाँ खड़ी है ये अपने मेयर जनाब काशिफ शोरो साहब से ये उम्मीद रखती है कि वो एक यकीनन एक अच्छे इंसान है और उनको एक मजबूत टीम की ज़रूरत है। उस टीम में जहाँ कमियां हैं, कोताहियां हैं, उसको दूर करके एक अच्छी टीम शामिल करें और जो चेयरमैन काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल बजट होना चाहिए। देखें जो काम करे उसको स्पेशल बजट मिलना चाहिए। जी हाँ, मैं काशिफ अली शोरो साहब से ये इस्तदा करूँगा कि वो हमारे काम से मुतमईन है। उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरी यूसी का विज़िट भी किया है, हमें एक रोड दिया है बना के जिसका तखमीना तकरीबन 50 लाख रुपए का था यूसी के सामने मक्का मस्जिद तक, और उन्होंने मुझसे मज़ीद वादा किया है कि आप 1 कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊँगा। तो डिस्पेंसरी का भी उन्होंने मुझे कहा है कि तामीर आप कर लें तो इंशाल्लाह। बिल्डर सही कर रहा है तो सर आवाम कभी वहाँ जाती है कभी वहाँ जाती है, तो आप इस मसले का हल निकालें ना कि ये दोनों मिलके, लोकल गवर्नमेंट मिलके और बिल्डर मिलके लोगों के मसाइल हल कर दें। देखिए मेयर साहब से मैं इस्तदा करूँगा कि बिल्डर को फोर्स करें कि भाई अपना सेवरेज का निज़ाम बेहतर करें। वासा की जिम्मेदारी नहीं है वो उस सिस्टम को बेहतर करना, उस सिस्टम को बेहतर करना बिल्डर की जिम्मेदारी है। मेयर साहब बीइंग बहैसियत वाटर बोर्ड के चेयरमैन के, वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से और तोफ़ेल अबड़ो साहब से मैं ये इस्तदा करूँगा बिल्डर पे प्रेशर डालें कि भाई अपना सेवरेज का सिस्टम को बेहतर करें तो वो रोड भी बन जाएगा। जब सेवरेज का सिस्टम बेहतर होगा, वरना रोड बना दें आप, कल रोड फिर तबाह हो जाएगा। जी हाँ, तो सेवरेज का सिस्टम बिल्डर ने सही करना है, वो सही करे तो रोड हम मेयर साहब से ज़बरदस्ती ला के खड़ा करेंगे कि जी रोड। कब्रिस्तान में लाइटें भी मेयर साहब से कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, अभी शब बारात आ रही है, मैंने कल देखी एक वीडियो कि जिसमें मेयर साहब ने अपनी टीम भेजी है और वहाँ पे काम हो रहा है लाइटों के। एक रात के हवाले से या पूरे साल के हवाले से? साल के हवाले से मैं इस्तदा करूँगा मेयर साहब से। अगर मेरी मुलाकात होगी तो मेयर साहब से मेरी यूसी हो ना हो, हमारे लोग वहाँ मदफून होते हैं, हमें भी एक दिन जाना है कहीं ना कहीं किसी कब्रिस्तान में मदफून होंगे, तो हम वहाँ ये कहेंगे मेयर साहब से जब मेरी मुलाकात होगी कि एक परमानेंट बेसिस पर वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम करें। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो की आवाज़ फराज शाहीन के साथ। वक्त हुआ है, आप फिर जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मिलते हैं, मैंने कहा था मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप यकीनन गए नहीं होंगे। मैं हूं पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं ये सारे पाकिस्तानी। देख रहे हैं आपके इमरान भाई ने इस रोड को बनाने के बाद सेफ्टी साइट पे जाके इन्होंने एक टेंट भी लगाया है ताकि रोड ख़राब ना हो और उसकी हिफाजत भी कर सके। मेंटेन करना सबसे बड़ा मसला है। बनाना तो आप बना दें लेकिन उसकी मेंटेनेंस ना हो तो फिर वही रोड दोबारा
जो है वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। जी इमरान भाई, ये इतना ख्याल आप रखते हैं लोगों का, तो लोग तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते होंगे। वो आप बता सकेंगे, आप लोगों से मिले हैं कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। ये रोड हमने कनाते इसलिए लगाई हैं कि सीसी रोड है तो सूख जाए। हमने जो है अभी बड़ी गाड़ियों का रास्ता बंद किया हुआ है ताकि रोड मजबूत हो जाए, ताकि आवाम इससे कई सालों तक इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह नमाजी जो है मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और अपने यूसी चेयरमैन इमरान बशीर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। तो आइए हम किसी नमाजी से ये पूछते हैं कि ये कितना मुतमईन है अपने चेयरमैन यूसी चेयरमैन इमरान बशीर साहब से। काम होते हुए कैसे नज़र आ रहे हैं? माशाल्लाह अच्छे काम हो रहे हैं और लोगों की बनिस्बत बहुत अच्छे हैं और बहुत मेयारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान बशीर जैसा कोई यहाँ पर आया नहीं। अच्छा, माशाल्लाह नमाज पढ़ के आ रहे हैं सर, और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। कोई शक नहीं है, इन जैसा कोई नहीं आया है, एक आवाज़ में आ जाते हैं। बाई चांस कभी कोई बिजी होते हैं तो कोई मसला हो जाता, वरना ये फटाफट क्विक सर्विस जिसे कहते हैं ना। आप इस तरीके से कह रहे हैं मेट्रो की आवाज़ फराज शाहीन के साथ, और इमरान बशीर साहब भी इसी तरीके से आ जाते हैं जिस तरीके से मेट्रो आ जाता है। बहुत अच्छे बंदे हैं और मैं कोई शिकायत नहीं इनसे। हम तो चाहेंगे आइंदा भी ये आए, इलेक्शन के बाद भी ये आए, तशरीफ लाएं। हमारे इमरान भाई बहुत अच्छे हैं, सारे महल्ले में लाइटिंग। इलेक्शन से पहले भी ये काम कराते रहे और ऑन द स्पॉट जितने बजे भी फ़ोन करो ना फौरी आते हैं। रात के 3 भी बजे होंगे ना, ऑन द स्पॉट लेकर आते हैं फौरी तौर पर कि ये मसला है, ये मसला है। इमरान बशीर भाई बहुत बेहतरीन आदमी है सर। कोई डर खौफ तो नहीं है? नहीं, कोई डर खौफ का डर खौफ। हमारे महल्ले के जो चेयरमैन है बेहतरीन आदमी है। देखिए यार, यहाँ लोग मिल रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि इमरान बशीर साहब से मोहब्बत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे इमरान भाई इलाकों में है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, परवरदिगार हर परेशानी से बचा के रखे। बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन चलते हैं आगे की तरफ। जी, मेरा पूरा पाकिस्तान यकीनन हम सब का है, और थोड़ा सा चुटकुला है, थोड़ी सी हंसी मजाक भी होनी चाहिए, मैं ज़रूर वो बात करूंगा। अभी हम इस वक्त खड़े हैं बॉर्डर पर। आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सा बॉर्डर है हैदराबाद के अंदर जो फराज शाहीन साहब जो है वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। जी, ये बॉर्डर है 119 और यूसी 135 का, जिसमें इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये इमरान बशीर साहब का बॉर्डर आ जाता है जो कि तरक्याती काम हो रहे हैं, और इस तरफ आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि यूसी 135 में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दूर तक ले जाएं जहाँ तक आपकी जो है वो कैमरे की आंख देख सके। अब हम पूछते हैं कि ये फ़र्क क्या है 119 में और 135 में, और 135 के यूसी चेयरमैन कौन है? जी सर। नोमान शाह। आप नोमान शाह साहब की कारकर्दगी से मुतमईन? नहीं, मैं तो अपने इमरान बशीर की कारकर्दगी से। आप कहाँ रहते हैं? यूसी 119 पे हम बॉर्डर में खड़े हैं। ये मेरा सामने घर है। अच्छा। और इंशाल्लाह हमारे इमरान बशीर भाई ऐसे हैं कि चेयरमैन वाली बात नहीं है इनके अंदर, ये भाइयों की तरह दोस्तों की तरह रहते हैं, और चेयरमैन वाली बात नहीं है। अच्छा, 135 वाला कोई यहाँ मौजूद है तो मैं कहूँगा कि ज़रा 135 की भी गुफ्तगू हो जाए। कोई यूसी 135 में रहता है? 135 में कौन है? आप जी, आपका गुड नेम? गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद भाई, मुझे ये बताइए, हम इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हैं, यूसी 119 और इस तरफ आ जाते हैं यूसी 135, ठीक है? तो आप मुझे बताइए 119 में रहते हैं या 135 में रहते हैं? 35 में। तो आप थोड़ी बहुत तो जेलसी होती होगी? बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, इमरान भाई को सुबह देखता हूँ फजर के टाइम उठते हैं और यहाँ की तरफ जाते हैं, सारे तरक्याती काम होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ निज़ाम ही नहीं है। पीछे बैग की तरफ भी कोई निज़ाम नहीं है, ना झाड़ू दिलती है ना कोई सफाई है। यहाँ सुबह जो है सफाई वाले भी आते हैं, सब आते हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं? आपके जो यूसी चेयरमैन है उनका नाम क्या है? नोमान शाह, पूरा नाम मेरे ख्याल से आई थिंक नोमान शाह है। तो नोमान शाह साहब जो है वो यहाँ नहीं आते? तो ये लाइट जो सामने लगी हुई है खंबे पे, मैंने सुना है नोमान शाह साहब ने लगाई है। सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पहले की लगी हुई लाइट। पहले की लगी, पुरानी लाइट लगी हुई है। सर रोशनी तो दे रहे हैं ना नोमान भाई आपको? नहीं, फिर इमरान भाई ने दी होगी यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो आपको ये भी उम्मीद नहीं है कि ये लाइट नोमान भाई ने लगवाई होगी? कुछ भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, आइए नाज़रीन हम इमरान भाई की तरफ चलते हैं और पूछते हैं, इमरान भाई ये लाइट जो है रोशनी तो नोमान भाई ने माशाल्लाह यहाँ दी हुई है। ये वो नुमान मेरे भाई हैं और मेरे कुलीग भी हैं,
ये जो कुछ दोस्त हमारे यूसी 135 के आए थे, उन्होंने मुझसे इस्तदा की थी कि एक लाइट हमें दे दें, तो मैं उन्हें मना कर रहा था कि मैं नहीं दे सकता, उनकी यूसी है, वो नाराज़ होंगे, मेरे भाई हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि लाजमी लोगों की भी थोड़ी सी रखनी है, तो मैंने उनको लाइट दी थी, तो उन्होंने अपने घरों के आगे ये लाइट लगाई थी। देखिए आप बॉर्डर के इस तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं जी है हाँ। कि नोमान भाई फिर आपसे कहेंगे आप बॉर्डर के इस तरफ हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, अपनी यूसी में आ जाएं। मैं अगर वो मुझे कहेंगे तो लाइट में उतार लूँगा और उनसे कहूँगा वो लगा दें यहाँ पे लाइट, और वो जो है वो मेरा आप इधर आइए, आप बहुत हंस रहे हैं, आप इधर आइए। जी मैं देखें, नुमान शाह मेरा भाई है कुली के, यकीनन कोई ना कोई उसकी मजबूरी होगी, वो काम नहीं कर पा रहा, या कोई उसके अभी वालिद की भी डेथ हुई है, तो बात यह है कि हम अच्छा, वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो हम सब ताज़ियत करते हैं, मेट्रो की पूरी टीम उनसे ताज़ियत करती है नोमान शाह साहब से। देखिए, मुझे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, मेरे लोगों ने वोट दिया है यूसी 119 के लिए, मैं अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए, अपनी आवाम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए अपनी यूसी में काम करवा रहा हूँ। इक्का दुक्का कोई कहीं और यूसी का आ जाता है तो वो करवा देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मकसद इमरान भाई, ये जो आवाम है ये तो उम्मीदें रखती है कि सारी यूसियाँ आपके अंडर में आएँ ताकि पूरा लतीफ़ाबाद खूबसूरत हो, क्या राय है आपकी? जी बेशक, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों हम लोगों की राय ले रहे हैं। तो दिल की बात मेट्रो की आवाज़ से। जी मेट्रो की आवाज़ है, मैं अपने दिल की आवाज़ से कहूँगा इस बात के लिए कि माशाल्लाह से हमारे इमरान भाई जो हैं कि ये कह लें कि एक फरिश्ते की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें ये चेयरमैन दिए हैं, जो कि जब इस ओहदे पे नहीं थे उस वक्त भी अपनी जिम्मेदारी को इसी तरीके से निभा रहे थे और आज भी उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। तो सुबह फजर की नमाज के बाद ही फ़ौरन ये अपनी विजिट पर निकलते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं, लेकिन सुबह पता चल रहा होता है कि यहाँ की गटर लाइनें, हर चीज़ खुद ब खुद ही बगैर कहे यहाँ आते हैं लोग और सारे काम हमारे हो जाते हैं। सर, आपकी जो घरेलू लाइफ है, भाभी नहीं कहती कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप कहाँ चले जाते हैं और अपने हलके में मौजूद होते हैं, क्या उनको टाइम देते हैं भाभी को आप? मैं देखिए, मैं एक तंजीमी आदमी हूँ और मेरी जो है एक 35 साल मेरे MQM को दिए मैंने, और मेरा रूटीन शुरू से ऐसा ही है कि मेरी जो बुनियादी तरबियत हुई है सियासी तंजीमी, मुझे अपने अवाम की खिदमत करने का दर्स मिला, तो अवाम के खिदमत के लिए जो है वो यकीनन मेरी वाइफ भी मेरे साथ है और वो मेरा साथ दे रही है इस सिलसिले में। यकीनन घर वाले भी, जाहिर सी बात है, आप टाइम अपने हलके में देते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन वो यकीनन आपकी तमाम आदत से आदी हो गई होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी शादी को 22 साल हो गए, तो अब वो अगर नहीं भी हुई होती तो अब तो वो बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई। बिल्कुल। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान भाई को यहाँ का चेयरमैन की बजाय MNA होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो PS से भी NA पे चले गए सर। बिल्कुल है ना, मैं पीछे सुन के आ रहा हूँ, लोग PS का क्या नहीं, MP नहीं MNA होना चाहिए, इसलिए कि इनकी कारकर्दगी की है ना, वो हम सबके सामने है, जितने लोग खड़े हुए हैं ये सब आपको बता रहे हैं ना, और हम भी नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं, बावजू हैं, अल्लाह के हुक्म से हम झूठ नहीं कहेंगे, इनकी कारकर्दगी पूरे इलाके के अंदर बहुत अच्छी है। सर, आपने PS63 का MPA या MNA यहाँ देखे आवाम के अंदर मौजूद होते हैं? ना आज तक किसी को नहीं देखा, कोई MNA MPA यहाँ पर हमारे इलाके में नहीं आया। हमारे MPA MNA इमरान भाई। अच्छा, तो ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो ये लोग ताली तो बजा नहीं रहे, मुझे लगता है आपकी बात से ताली बजनी चाहिए ना यार, बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि हम इनकी कारकर्दगी देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे हैं, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। फैसल नागड़ है और मैं बाय प्रोफेशनल टीचर हूँ और ये मेरा इलाका है जिसमें जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, लावारिस इलाका। बस जब मैंने यहाँ मकान परचेज़ किया था और इस उम्मीद पे किया था इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएंगी। जब मैं यहाँ से निकल के इस तरफ आता हूँ तो मुझे महसूस होता है ये किस तरफ आते हैं, बॉर्डर इस तरफ आता हूँ मैं, बॉर्डर पे आइए ना इस सर। रोज़ के रोज़ के साथ ये पता चला UC 119 है और हम UC 135 मैंने में खड़े हैं। मरतबा यहाँ की जो LA मोहल्ला है उनसे सवाल किया कि भाई प्लीज़ मुझे ये बताया जाए कि हमारा ये एरिया क्यों नहीं बन पा रहा, ये छोटा टुकड़ा है हार्डली 200-300 गज का। तो मुझे बताया ये गया है कि भाई ये इलाका जो है नोमान शाह साहब के UC में आता है और वो जो आप टाइल्ड वाला प्रॉपर RCC पेवर का जो देख रहे हैं रोड, वो जो है एरिया इमरान बशीर साहब का आता है। तो मैंने कहा यार, तो यहाँ के लोगों ने वो क्या वजूहात की जिनकी बिना पर इन्होंने वहाँ पर
वोट दिया और यहाँ नहीं दिया, क्या वजह है? तो बोले ये आपकी देने या यहाँ के लोगों के देने या ना देने से नहीं हो सकता था, ये ऊपर से जो तकसीम की है ज़िलाई लेवल पर वही कुछ इस तरह से हुई है कि जिन मनपसंद लोगों को जिम्मेदारी दी गई वो प्रॉपरली तरीके से अपने सरंजाम को नहीं दे, अपने असाइनमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो मैं आप कहें मेट्रो की आवाज़ फराज शाहीन के साथ, और इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जी, मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ ये मेट्रो सिस्टम या मेट्रो न्यूज़ के ज़रिए जो हमारा पैगाम पर पाकिस्तान की जो वो लोग जो पावर अख्तियारात रखते हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि प्लीज़ खुदा का वास्ता ये डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर ताका लतीफ़ाबाद के अंदर यूसी जो है इस नौमान शाह साहब और ये बशीर साहब, इनका दौर दौरान हम कब पॉजिटिवली तौर पे खुद सर्वे करें। आप देखें कि आप लोग जो है किस तरीके से किसको लाइक कर रहे हैं और किसको डिसलाइक कर रहे हैं। डिसलाइक करने की मेन रीजंस क्या हैं? वो रीजंस ये हैं, मेन रीजंस उनकी हैं मेन वर्किंग। देखें, महज़ब मुआशरे के अंदर अब आप जब तकमे की बात करते हैं तो वहाँ पर बुनियादी सहूलियात दी जाती हैं। यहाँ के गरीब लोग, ये बुज़ुर्ग आपसे ये नहीं मांग रहे हमें दौलत दो लाके, हमें कार दो, बंगला दो लाके। वो तो ये कह रहे हैं हमें बुनियादी और बुनियादी जो हुकूक हैं हमारे, सेवरेज की लाइन चाहिए हमें जिससे हमारे निकासी आप प्रॉपरली हो सके, हमें मीठा पानी चाहिए जो कि फ़िल्टर्ड हो, ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें और प्रॉपरली जो ये जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम जो है वो कम होता है जी, आप जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है जी। 30 साल से हम पानी के लिए, यहाँ मीठे पानी के लिए परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई की वजह से आज हम पानी से भी घर घर में हमारे पास 119 में इधर नाम लेना आप यूसी का, इमरान भाई ने ये काम कराया माशाल्लाह से। आज हम सब लोगों के पास पानी का भी इंतजाम है और घर घर में हमारे पास मीठा पानी है। घर घर में मीठा पानी। कंटिन्यू करूँगा कि मैंने सुना, अभी मैं लेट आया, इंटरव्यू दिया किसी ने कि वहाँ से लाइट उतार ली जाएगी। तो खुदा ना वास्ता ये इमरान बशीर साहब ने ये एहसान की इंसानियत पे किया है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब अंधेरा होता है वहाँ बुजुर्ग गुजरते हैं, वो गंदा पानी भरा होता है, तो उसमें मैंने खुद देखा अपनी आंखों में, झूठ नहीं कहूँगा, एक बुजुर्ग गिरी है। तो उसके लिए मैंने अपने घर से लाइट का बल्ब भी खोल दिया ताकि कोई बुजुर्गों को चलते हुए परेशानी हो। तो इन्होंने एक सबसे अच्छा जी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लाइट नहीं उतारेगा, बस हाँ, कोई लाइट नहीं उतारेगा। और यकीन करेंगे अगर इमरान भाई को स्पेशल, मेरी बात सुनिए, इमरान भाई को स्पेशल अगर बजट अलाउट होता है तो ये यहाँ से लेके आगे तक भी लाइटें लगवा देंगे। क्यों इमरान? जी हाँ बिल्कुल, ये फैसल नागड़ भाई टीचर हैं और ये लाइट हमने इन लोगों की दरख्वास्त पर वहाँ पर लगाई थी यूसी 135 का एक पोल पर इनके घर के नज़दीक। और फैसल भाई आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे लोग हैं, आप लोगों के साथ आपके दुख दर्द हर चीज़ में आपके साथ है। एक लाइट, ये तो लाइट की मेरी यूसी नहीं है लेकिन लाइट तो एक छोटी सी बात है। अगर कोई पूरा पाकिस्तान हमारा है। जी हाँ, पूरा पाकिस्तान हमारा है, लाइट तो छोटी सी बात है। अगर कोई बड़ा मसला भी हो तो इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, चलते हैं मजीद इमरान भाई के साथ और यूसी इनकी और हम विजिट करते हैं। हम आगे हैं इस वक्त वार्ड 3 के अंदर और यहाँ के काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनका नाम क्या है। वैसे मुझे तो नाम पता है लेकिन ये खुद अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी पूरी टीम का। आपने हमारी यूसी का विज़िट करा और हमारे कामों को उजागर करा। मैं ज़ुबैर उस्मानी और माशाल्लाह से हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने अपनी काविशों से बहुत, यहाँ पे ऐसा नहीं है मसाइल नहीं थे, मसाइल थे, उनको हल करा इन्होंने। सारे वार्ड में यूसी के जो सेवरेज की लाइनें थी वो सब नई डलवाई हैं, सारी स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम करवाया है और इधर की आवाम इनसे बहुत मुतमईन है, इन दोनों से, चेयरमैन इमरान बशीर और वाइस चेयरमैन शाहिद भाई। और मैं इन दोनों को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। यूसी के और जो हैदराबाद की यूसी होंगे चेयरमैन है उनको भी पैगाम दूंगा कि भाई इनको मिसाल बनाएं और काम करें, लोगों के मसाइल हल करें ताकि आवाम सुख का सांस लें। आवाम सुख का सांस लें। नाजरीन, हम मौजूद हैं पाकिस्तान जो हमारा प्यारा वतन है, उस फ्लैग के नीचे जहां हम सब मुतमईन हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि पाकिस्तान का जो लहराता हुआ झंडा है वो ज़रूर दिखाएं और पूरी दुनिया इस झंडे की कदर करती है। और हमारी जो शाहीनों की परवाज़ जो 9 और 10 मई की रात को जो हमने जंग जीती, माशाल्लाह सारी दुनिया ने देखी। और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को हैदराबाद की आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम खराज तहसीन पेश करती है, सलूट पेश करती है। यकीनन उन्होंने हम सब पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब हम चलते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ दिल पाकिस्तान इमरान भाई सुनाएंगे हमें। वी लव पाकिस्तान, जो इमरान भाई ने माशाल्लाह इस चौक को सजाया है और ये खूबसूरत जो दिल बनाया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिल दिखाएं
क्योंकि यकीनन हम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। जी इमरान भाई, देखा यहाँ सब लोग मौजूद हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। यकीनन हम सब पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। और आप कितना खराज तहसीन पेश करेंगे हमारी पाक आर्मी को। और मैं इनसे कहूँगा कि इन्होंने जो दिल लगाया, ज़रा इसे घुमा के भी दिखाइए, ताकि हमारी पाक आर्मी को हैदराबाद की अवाम, पूरे पाकिस्तान की अवाम खराज तहसीन पेश करती है। खुसूसन हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, DG/ISPR अहमद शरीफ साहब को, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, हमारे CM सिंध, हमारे गवर्नर साहब को, और हमारे काशिफ शोरो साहब को, जो हैदराबाद में काम करने के हवाले से काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आते हैं। और मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगा कि काशिफ शोरो साहब से क्या डिमांड रखते हैं लतीफ़ाबाद के हवाले से। सर, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, और फिर इमरान भाई ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन। हर चीज़ का ख्याल रखा है, आवाम का भी रखा है, जगहों को भी रखा है, हर चीज़ का ख्याल रखा है इमरान भाई ने। जी इमरान भाई, आप मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, कि यहाँ लोग जो है वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन इसकी कोई ख़ास वजह, जल्दी से बताइए। देखिए जी, आवाम के काम करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान कायम व दायम है तो हमारी सियासत भी है, और हमारी तमाम चीज़ें पाकिस्तान से मशरूत हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, आसिम मुनीर साहब के हाथों में है, और पाक फ़ौज सीसा पिलाई हुई दीवार है। अपनी कौम की, अपने मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में देखकर हमें खुशी महसूस होती है। और इंशाअल्लाह हम सब जब ही मुस्तहकम होंगे जब पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान, पाक फौज, पाकिस्तान अवाम, बहुत शुक्रिया। रोशनियों के नाम से पहचाने जाने वाले हमारे यूसी चेयरमैन, जो यहाँ के इलाके के लोग कहते हैं कि इनकी पहचान जो है वो रोशनी बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपने इलाके को रोशन किया हुआ है। इमरान भाई, जल्दी से कुछ कहना चाहें आप। देखिए जी, हमारी ये जो पहचान रोशनी है, तो हम जो है अपनी यूसी को रोशन रखे हुए हैं। अपने अज़म था, हमारा अज़म है कि अपनी यूसी को रोशन रखें, ताकि लोगों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम हो सके। इंतखाबी निशाना आपका क्या था? ताला। जी, लेकिन ताला लगाने के लिए नहीं, खोलने के लिए, अवाम के लिए। ताले की एक तारीख है, ताला हमने खोल दिया है, ताले की एक तारीख है। अगर इस पे अगर कभी बात होगी तो आपको बताऊंगा, ताले की एक तारीख है। बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं मेट्रो की आवाज़ फराज शाहीन के साथ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी चेयरमैन इमरान बशीर साहब के साथ। और इन्होंने हमारी तवाज़ु के लिए माशाल्लाह गरम गरम जो है वो समोसे मंगाए मेट्रो 1 न्यूज़ के लिए। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप क्या क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते हैं इमरान भाई? जी फराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वार्ड वाइज टीमें भी बनाई हुई हैं। आज टूर्नामेंट था, तीसरा टूर्नामेंट हमारी यूसी की टीमों का। क्रिकेट पे बात आई तो फराज भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा हैदराबाद के लिए PSL की टीम जो मंसूब हुई उसके लिए आपका आवाज़ उठाने पर। और आपने जो जिस तरह चैनल 5 और दीगर जब चैनल से आपने आवाज़ बुलंद की, उस आवाज़ को हमारे दबंग वज़ीर दाखिला जो है और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने उस आवाज़ को कैच किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद की टीम मंसूब हुई। हम मोहसिन नकवी साहब का मशकूर हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में ताउन किया। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने भी इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त की। मैं मोहसिन नकवी साहब से आपके चैनल के तवस्सुस से मैं ये इस्तिदा करूँगा कि मकसद जो है इस्तिदा करूँगा कि मोहसिन नकवी साहब से कि वो ब्रांड एम्बेसडर
آپ کو منتخب کریں حیدرآباد کی ٹیم کے لیے، کیونکہ آپ کی کاوشیں ہیں۔ بہت شکریہ جی، یقیناً میٹرو ون نیوز سے اور چینل 5 سے میں نے کوشش کی کہ حیدرآباد کی آواز بنوں، اور نیاز اسٹیڈیم پہ بھی میں نے کوشش کی کہ آواز اٹھاؤں۔ ماشاءاللہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے وہاں کی لائٹس بھی منظور کی ہیں، اور کوشش ہے کہ ایک آدھ پی ایس ایل کا میچ اپنے گریٹ محسن نقوی صاحب سے گزارش کروں گا۔ حیدرآباد کی پوری عوام چاہتی ہے، ہمارے آپ وزیر داخلہ بھی ہیں محسن نقوی صاحب، آپ کو سب سے پہلے فراز شاہین کی طرف سے، میٹرو ون نیوز کی طرف سے خراج تحسین، چینل 5 کی طرف سے بھی آپ کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہماری صرف حیدرآباد کے لوگوں کی ایک گزارش ہے آپ سے کہ ایک آدھ پی ایس ایل کا میچ حیدرآباد کو اسی سال ملنا چاہیے۔ میئر صاحب کاشف شورو صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، اسٹیڈیم بہت زبردست قسم کا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، صرف لائٹس کی کمی ہے، تو ضرور آپ کوشش کیجیے گا، ہم آپ سے بہت ساری امیدیں رکھتے ہیں۔ جی نیاز اسٹیڈیم ماشاءاللہ کاشف بھائی نے بہت اچھا اس کو مینٹین کیا۔ جی ہاں، میئر حیدرآباد کاشف علی شورو صاحب نے نیازی اسٹیڈیم کی اصلاً و تعمیر کروائی ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی، ہماری گفتگو ہوئی کہ پی ایس ایل کے میچ جو ہے وہ حیدرآباد میں ہوں، انٹرنیشنل میچز جو ہے حیدرآباد میں ہوں۔ اب صرف کمی ہے، وہ شاید جو میری نالج ہے سندھ گورنمنٹ اس کی اپروول دے چکی ہے، شاید ٹینڈر بھی شاید غالباً ہو چکے ہیں، فلڈ لائٹس لگنی ہیں، وہ پی ایس ایل سے پہلے شاید لگ جائیں گی، اور انشاءاللہ میں محسن نقوی صاحب سے استدعا کروں گا پھر ایک دفعہ کہ پی ایس ایل کا میچ حیدرآباد کو دیں، حیدرآباد کو دیں۔ اور حیدرآباد اس وقت تو یقیناً آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ جب سارا میڈیا حیدرآباد 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 کر رہا تھا، جب سرور صاحب نے فاز سرور صاحب نے ٹیم پرچیز کی، تو 9 مہینے سے تقریباً شاہین کی پرواز سے میں ایک پروگرام کرتا ہوں چینل 5 سے، تو ماتلی حیدرآباد کراچی اسی سے شو شروع کرتا جی ہوں، ہاں، اور حیدرآباد کا تذکرہ جو ہے وہ اس شو میں اسٹارٹ میں آتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب پورا میڈیا حیدرآباد حیدرآباد کر رہا تھا، تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ خوشی کی لہر حیدرآباد میں کیسے دوڑی سر؟ دیکھیں انسان کو اپنی بنیاد نہیں بھولنی چاہیے، ہم پیدا ہوئے ہیں اس مٹی سے، حیدرآباد میں پیدا ہوئے ہیں، تو حیدرآباد سے والانہ لگاؤ ہمارا فطری عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت دی ہے انسان کو۔ میں حیدرآبادی ہوں، حیدرآبادی ہونے میں مجھے فخر ہے، اور آپ بھی حیدرآبادی ہیں، آپ کو بھی فخر ہے حیدرآبادی ہونے پر۔ جتنی تمام لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں بہت بے پناہ خوشی ہوئی، اور کہ حیدرآباد کا نام پی ایس ایل میں آیا، کرکٹ کا نام روشن ہوگا، حیدرآباد کے کھلاڑیوں کا نام روشن ہوگا، حیدرآباد کے ٹیلنٹ ابھرے گا، اور انشاءاللہ حیدرآباد کے نوجوانوں کو ایک نئے ٹیم کی صورت میں ایک ہم سپورٹ کریں گے۔ پہلے ہم کبھی کوئٹہ کو، کبھی کراچی کو، کبھی پشاور زلمی کو سپورٹ کرتے تھے، اب انشاءاللہ ہم پورے حیدرآباد کہیں میٹرو کی آواز فہد سرور صاحب سے، جو کہ حیدرآباد کے آنر ہیں سر۔ فہد سرور صاحب جو ہے حیدرآباد ٹیم کے آنر ہیں، انہوں نے حیدرآباد پر یہ ایک احسان کیا کہ انہوں نے حیدرآباد کی ٹیم پرچیز کی۔ ہم تمام حیدرآبادی حیدرآباد کو سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ حیدرآباد کی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ فاز سرور صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو عمران صاحب نے میرے لیے جو کمنٹس کہیں کہ برانڈ ایمبیسڈر ہونا چاہیے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو ایک ناچیز ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی آواز کو بلند کروں، حیدرآباد کے مسائل ایوانوں تک پہنچاؤں، اور یقیناً حیدرآباد کے مسائل ایوانوں تک پہنچ رہے ہیں، اور گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ حیدرآباد میں ترقیاتی کام تیزی سے ہوں۔ میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، گورنر کامران تصوری صاحب کا شکر گزار ہوں، اس کے علاوہ چیئرمین جو ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، اور وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور آخر میں میئر کاشف شورو صاحب کا، اور ہمارے جو صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی ممبر ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی سے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، چاہے وہ آزاد ہیں، سب کا شکر گزار ہوں کہ حیدرآباد کی آواز ان کے کانوں تک جا رہی ہے۔ عمران بھائی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میٹرو ون نیوز اور چینل 5 کی جو سروسز ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ڈائریکٹر میٹرو ون نیوز کے امیر علی چانڈیو صاحب کا، اور چینل 5 میٹرو ون نیوز کے چیئرمین خالد رائن صاحب کا، اور فراز صاحب آپ کا، اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ
کہ آپ لوگ، آپ تمام حضرات حیدرآباد کے مسائل کو جس طرح اجاگر کر رہے ہیں، نہ صرف اجاگر کر رہے ہیں بلکہ اس کو حل کرانے میں بھی ہمارے ساتھ قدم بہ قدم ملا کے حیدرآباد کے منتخب نمائندوں کے ساتھ آپ کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، آپ کی پوری ٹیم کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بہت آپ نے زبردست باتیں کی ہیں، اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ لیاقت علی خان صاحب کی یہاں تصویر موجود ہے، اور میرے بیک میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی یہاں تصویر موجود ہے، اور اس طرف میں آتا ہوں تو فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی تصویر یہاں موجود ہے۔ تو آپ نے تو وہ مثال اپنے آفس میں قائم کی ہوئی ہے کہ ایک آزاد حیثیت سے ایک آزاد پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے اپنا عمران بشیر بھائی۔ دیکھیں، یہ تمام اکابرین، ان کا ہم پر احسان ہے، آج ہم ان کی بدولت یہاں پاکستانی کہلا رہے ہیں۔ ان سب نے اپنی قربانیاں دیکھے، نواب لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، ان سب کی قربانیاں کے طفیل آج ہم یہاں پاکستانی کہلانے کا محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹا سا سوال، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حیدرآباد آنا چاہیے؟ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے یہ کہوں گا کہ جس طرح وہ پنجاب میں کام کروا رہے ہیں، سندھ بھی انہی کا ہے، حیدرآباد بھی انہی کا ہے۔ حیدرآباد آئیں اور ایک بہت بڑا پیکج کا اعلان کریں منتخب نمائندوں کے ساتھ، بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ساتھ، اور حیدرآباد کے مسائل کو دیکھیں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ بہت شکریہ جی۔ یقیناً ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ حیدرآباد کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، میں اسی طرح کی ایشوز جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور میں ہائی لائٹ کروں گا، انٹیریئر سندھ کے بھی، حیدرآباد کے بھی، اور اگلے پروگرام میں آپ سے کوئی اور کسی یو سی چیئرمین کے ساتھ یا کسی ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ آپ کو نظر آؤں گا۔ یہ حیدرآباد، ماتلی، بدین، میرپخاص، ٹنڈولیاٹ، لاڑکانہ، سکھر، پورا سندھ ہمارا ہے۔ جن شہروں کے میں نام بھول رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں اپنی ناظرین سے۔ پورا سندھ ہمارا ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ایشو لے کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ضرور بنیے گا میٹرو کی آواز فراز شاہین کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان عوام زندہ باد۔